बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त आवाम को जो शिकायत है ना, वो सबसे मेन शिकायत में से एक शिकायत सबसे बड़ी है, वो है महंगाई। और वो महंगाई बाकी चीज़ों को लेकर तो है, मतलब रोज़ हम जो चीज़ें अमूमन इस्तेमाल करते हैं, कभी कर ली कभी नहीं कर ली, जैसे साबुन हो गया, सर्फ हो गया, चीनी हो गई, मिसाले हो गए। अब ये वो चीज़ें हैं जो रोज़ के इस्तेमाल में हैं, जो लोगों ने इस्तेमाल करनी ही करनी है, लेकिन जिस तरीके से इनके रेट में इजाफा होता जा रहा है ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। समझ से बाहर है कि महकमे कर क्या रहे हैं। देखें, एक डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, एक महकमे बनाए गए हैं, ज़िला इंतज़ामिया बनाई गई है। इसलिए इदारे बनाए जाते हैं कि ताकि कीमतों को कंट्रोल करवाया जा सके, आवाम को सहूलियात मिल सकें। लेकिन बाज़ारन हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि एक तो रेट वो निकलता है जो सरकार की जानिब से निकलता है। समझ में आता है जी महंगाई भी, हुकूमत ने ये रेट तय कर दिया, उस रेट पे चीज़ आ गई, लेकिन उसके बाद वही चीज़ें मार्केट में या शॉप्स में अपने अलग रेट पर मिलती है। आज उसी बातों को सामने रखने मैं अकबरी मंडी के इस वक्त बाहर मौजूद हूँ। यहाँ आने वाले हर बंदे से बात होगी, चाहे वो गाहक है, या कोशिश करेंगे दुकानदारों से भी बात हो जाए। सारी बातें आपके सामने रखते हैं। इस शहर में लुट जाए फकीरों की कमाई, तो उस शहर के सुल्तान से कोई भूल हुई। और ये भी महंगा कर दिया, साथ है इसको भी ले लो। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ, ਵੋਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਲੱਗ ਜੋ, ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਬੇਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਆਂਦਾ ਚੀਨੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੱਧਰ जाइए गरीब, किधर जाए? भाईजान क्या हाल है भाई साहब? तबीयत ठीक है? आप खरीद हैं? ऐसा मसला अकबरी मंडी लोग तभी आते हैं जब थोक पे ख़रीदारी करनी हो, ज़्यादा तादाद में ख़रीदारी करनी हो। हाँ जी। महंगाई की सूरत हाल इधर क्या है? अंदर तो पता लगता है रिटेल बड़ी मैं महंगी तो है। पहली दफा ही आया जी, मैं तो कभी खड़े ही कभी नहीं आया? नहीं। दुकान तो ही महल्ले च ले लेते। महंगाई वैसे क्यों बहुत ज़्यादा है महंगाई वालों तो मार गए ਅਸੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਓਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਪੈਟਰੋਲ ਜੇ ਇਹ ਘੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹਨੇ 2400 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਕਟ। ਯਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਚੀਨੀ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਲਵੇ ਕੀ। ਚੀਨੀ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਕੋ? ਚੀਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਦੀ 170 ਰੁਪਏ। ਕਿਧਰੋਂ? ਉਧਰੋਂ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ। ओहो, यानी चलो 200 से 170 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी। ਉਹ ਪਹਿਲੇ 200 ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਵੀ 170 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਨੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ 130 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ 170 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਭੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਤੇਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਤੇਲ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਵਾ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਹਰੇ 227 ਕੇ 232 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ 332 ਰੁਪਏ 332 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਰਾਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਟਰ। ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਕਿ ਯਾਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਲਵੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਓ। ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਹਵਾਈ ਕੰਮ, ਹਵਾਈ ਜਨਾਈ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ? ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਅਫਗਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਸਤੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਸਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਹੋ, ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਕੌਣ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਖੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਆਇਓ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਕਾਕਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕੀ ਯਾਰ ਖਿੱਚਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਜੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। 60,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਘਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ 2 ਫਰਿੱਜਾਂ ਜੇ, ਪੱਖੇ ਜੇ, ਕੂਲਰ ਹੈ, ਬਸ ਹਰ ਘਰ ਦੀ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬਿੱਲ ਜੇ। ਆਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਹੋ, ਤਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੜਾ मज़ा आया जी, बहुत शुक्रिया। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हाँ साहब ठीक ठाक है? काम करते हैं इधर? काम किधर है भाई? थोड़ी देर वेले फिर रहे हैं। क्यों? महंगाई है, कारोबार खत्म हो गया हमारे पास। माजी में भी आती है। 40 साल का कारीगर वेला फिर मांग रहे, भीख मांग रहे हैं।
खुदा पाक की कसम ना कसम खुदा करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कल मैं कसम के कहा ये पैर मेरी जूती देखें आप ये देखें जरा किस मारे किस टूटी हुई है, वो मार रहे हैं कैमरा कैमरा। और मैं दुकानदार से लेने गया कहते खान साहब 300 रुपये। मैंने कहा भाई 300 रुपये मेरे जेब में पैसे नहीं है। क्या लेने गए थे आप? ये जूती लेने गए थे, वो 300 रुपये मांग रहा था। मेरे कहा मेरे पास पैसे 300 रुपये है नहीं। तो लाला काम क्यों नहीं कर रहे, क्या हुआ है? भाई साहब 40 साल का कारीगर है, काम नहीं है, क्या करे? 40 साल का कारीगर है, वेला फिर रहे हैं। कहीं पे कोई काम नहीं मिल रहा? कहीं पर किसमें किसी क्या वजह बन रही है? बस ये आपको वजह क्या इतनी लगता है? महंगाई को जिसने कारीगर रखे थे वो निकाल दिए, जिसने 4 कारीगर रखे 2 कारीगर 1 कारीगर कहते कारोबार कोई नहीं है। हमारी महंगाई इतनी है मैं तो महंगाई पे भी सवाल करने लगा था आपसे, आपने तो पहले ही बात खत्म कर दी। महंगाई इतनी है कि क्या गुर्बत ने इतना घेरा हुआ है, बीमारी सर के ऊपर चढ़ी हुई है। खुदा पाक की कसम है, अगर मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। ये कपड़े भी किसी ने दिए हुए, किसी पे पाने के लिए दिए। अगर भी ये मैं बावजू अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़े, सुबह से पढ़ी, झूठ नहीं बांटता, गलत बात नहीं करना। हमारे लोगों में क्या रह गया भाई? कमीज उठा के तुम्हें पेट ही दिखाना ना ऐसा। क्या बच्चे बीवी बीमार है, घर पे पैसे नहीं जाने के लिए, बच्चा बीमार है कैंसर का, 7 साल का बच्चा, उसके दवाई के पैसे हमारे पास नहीं है। अभी एक बच्चे बीवी को जो लेकर आया था ड्राप जल 800 रुपये मांग रहे थे। इतनी कमजोर है, कोई हिसाब ही नहीं है, पैसे नहीं है, कहाँ से लेकर? अभी आप मेरे जेब में मुझे देखे बता रहे, मैं तो चुप ही हो गया, मुझसे तो कुछ सवाल ही मेरी किया जा जेब रहा। आपसे मेरे से अभी तलाशी ले ले, जैसे पुलिस वाला तलाशी ले ले। मैं कह रहा हूँ कि मैं परेशान हो गया, मैं अब आपसे बात क्या करूँ? मैं तो ये पूछने लगा था, चीज़ें महंगी हो गई, आप ले पा रहे हैं? क्या बात भाई, इधर ये दुकानदार मैं सुबह से आकर बैठो, मेरे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार सुबह से आकर आराम से बैठा हूँ, कोई दुकान नहीं, कोई बात नहीं। अभी अल्लाह मालिक है, आपकी तरह भाई कोई इमदाद कर देते नहीं, अल्लाह मालिक, अल्लाह मदद करने वाला, अल्लाह कोई ना कोई सिलसिला बना देते हैं। अभी आपके लोग जैसे कैसे काफ़ी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ये हुक्मरान भी अच्छे हैं, मगर हमारे हम क्या करें भाई साहब, हम किसी कहाँ से जाएँ? मैंने कहा कि मैंने आपसे पूछना था, अभी मैंने पता नहीं आपसे क्या क्या पूछना था। ऐलान किया ना कि आयो सारे मद्दे मगर तुर पैणगे, रैली कटनी नवाज शरीफ होवे, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਸਾਡੇ ਮਗਰ, ਸਾਰੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਹੁਣ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, वो कहते ਹੁਣ हैं ਨਿਕਲਣ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। वो बेचारे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, ਕੀ ਉਹ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ? काम भी कोई नहीं गा। ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਹੁਣੇ ਟੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ जिवें तुसीं दस्सिया, मैं तो इन्ना जो फरमान लेना पिया। भाई मिले किसी को किसी के देने के पास, आज तो है मेरी बहन, किसी को देने के पास कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो हमको कहाँ से देंगे वो? हाँ, मैं बहन की बात भी सुना, मैं आपकी दोबारा सुन रहा हूँ। क्या हाल है आपका? ठीक है जी मेरी बहन। देखिए, जो भी सियासतदान है, तो साइड पे आ जाओ मेरी बहन, थोड़ा क्या, जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई, जो भी हैं, उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, उनको अपने बैंक भरने की पड़ी हुई है, चाहे वो बाहर के मुल्क हो, चाहे वो यहाँ का। उनको हम लोगों से, गरीब इंसान से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे। आज भी देखे आज कितना पेट्रोल जो है कितना महंगा हो गया है, तो गरीब आवाम देखे फिर भी वो लगे हुए हैं, अपने काम तो करना ही है, हमने खाना तो खरीदारी करने आई मेरी बहन, कुछ लेने आई थी जी आप? बिल्कुल। क्या लेने आए थे सामान आप? हम लोग ये जहेज वगैरह का सामान लेने आए हैं। तो अच्छा। देखिए, पहले कितना सस्ता था, अब महंगा हो गया। हाँ, अब उससे शादियों का और सीजन आ जाना है, भी आगे जाके 2 महीने बाद। अब उससे भी ज्यादा महंगा होता जा रहा है। तो देखिए, हम शादी करना छोड़ दें, कितना काम है, ये तो करना ही करना पड़ेगा। और बेसिकली जो रोज का खाना होता है वो तो उससे भी ज्यादा मेरी बहन, मैं खाने पे आता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सब सुन भी रहे हैं और आप भी सुन रही हैं, मैं यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ कि जहेज जो है ना, ये हमारे इस्लामी मुआशरे की रस्म नहीं है। लेकिन ये आप समझते हैं, हम समझते हैं, निकाह बड़ा सादा है, हम सादगी से निकाह करें, अपनी बच्चियों को उनके घर भेजें, लेकिन दुआएं दे के, यही जहेज है। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये सब लोगों को सोचना चाहिए। ये मैं भी बता रहा हूँ, ये आपने भी बताना, ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बोझ कम हो, एक गरीब बाप के ऊपर से ना उसकी बेटी का ये बोझ कम हो। बेटियां बोझ नहीं होती हैं, जी जी बिल्कुल। लेकिन जब उसने जहेज खरीदना है, जिस आपने बात की, बात तो मैं महंगाई की कर रहा था, तो मैंने कहा ये बात मैं कोड कर दूं जी। लेकिन ये आप जैसे लड़कों को ही सोचना चाहिए, क्योंकि वो लोग डिमांड भी करते हैं ना। जी बिल्कुल, ऐसे डिमांड तो होनी नहीं चाहिए ना। जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस्लाम इजाजत नहीं देता इस चीज़ जी। लेकिन आजकल इस्लाम के अलावा सारी चीजें हो रही हैं, इस्लाम की जो चीजें बेसिक है वो तो अल्लाह ताला सबको हिदायत है। मेरी बहन, मैं आता हूँ उस वाली बात पे वापस, महंगाई पे। आप सौदा सर भी लेती हैं रोज, आपको चीनी चाहिए मेरी बहन, आपको आटा चाहिए, आपको क्या लगता है जो हुकूमत कंट्रोल कर रही है इनको, इनकी स्मगलिंग रुकने की, कि जहाँ स्मगल हो रही रुक जाए, सस्ती मिल रही है चीज़ें सस्ती? पहले मुझे ये बताएं, इस मुल्क में हुकूमत कौन सी है? अब पूरी हुकूमत तो मुल्क चला रही है। पहले एक पार्टी को हुकूमत में तो आ लेने दे, लेकिन हमने वो भी देखा, पीटीआई भी देख ली, अभी पीपल्स पार्टी जो सबने मिल के बनाई उन्होंने वो भी देख ली। कोई भी कुछ नहीं कर रहा हमारे लिए, हमें तो फिर थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ गई है। और थर्ड पर्सन कौन होगा, किस तरह आएगा? आप क्या समझते हैं कि
अभी देखें जो हुकूमतें हमारे सामने हैं, जी, जी। इनमें से आपको बेहतर समझती हैं? क्योंकि बेहतर रहा था। बिल्कुल नहीं, इनको सबको देख लिया है, नवाज शरीफ को देख लिया है, पीपल्स पार्टी थी उससे पहले उनको भी देख लिया, ने काफी दावे किए थे, हाँ। लेकिन वो भी सारे के सारे धरे के धरे रह गए। बिल्कुल ठीक है, उसने बिल्कुल। डबल से ट्रिपल महंगाई करके दिखा दिया हम लोगों हाँ को, जी। हमें उस लेवल पे पहुंचा दिया कि हम लोग दोबारा उठने का और सोच उसके भी बाद नहीं जो सकते। 16 महीनों की हुकूमत आई है उसने जी क्या जी किया? जी जी, उसने तो और भी ज्यादा खराब कर दिया। वो तो फिर सीक्वेंस के साथ महंगाई बढ़ा रहा था, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, इन्होंने तो सीधा ही 100 रुपए बढ़ाना शुरू कर दिया। आप मसला पढ़ी लिखी लगती है, मुआशत को कंट्रोल करने के लिए आपको लगता है कोई ऐसे अनासर हैं हमारे जिन्हें कंट्रोल कर लेना चाहिए जी, तो जी। मुआशत काबू में आ जाए? कुछ समझती हैं आप ऐसा? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, किससे कंट्रोल किया जाए कि मुआशत स्टेबल हो जाए हमारी? हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी होती है। अगर हम सारे लोगों का सोचेंगे कि इनकी क्या ज़रूरत है, हमारी क्या ज़रूरत है, तो फिर हम सबको साथ लेके चल सकेंगे। हमें सिर्फ अपना पता होता है ये चीज़ हमें चाहिए, हम इस चीज़ से महंगाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकी ये दुकान है तो ये अपने हिसाब से करेंगे, बिल्कुल ठीक है। ये नहीं सोचेंगे कि अगर मैं इसमें 5 रुपए सिर्फ 10 रुपए बस इतना कर लूँ, वो कहेंगे पेट्रोल देखो, अगर उनको पीछे से सस्ता भी मिल रहा है ना, वो कहेंगे पेट्रोल महंगा है, मेरा भी काम है इसको मैं इंक्रीज कर दूं। हर चीज़ में अपनी मनमानी किए जा रहे हैं लोग, ये बिल्कुल नहीं सोच रहे कि एक साथ चलेंगे तो फिर काम बनेगा। अगर हम इंडिविजुअल होकर ये सोचेंगे, एक साथ किसको साथ चलना है ये भी बताएं? सारी आवाम को। ये आवाम को, सारी आवाम जितनी भी जी है? बिल्कुल। जी माँ जी, कोई नहीं चलता एक साथ, ऐसे ही हो गई है बस। कैसे माँ जी? कैसे हम महंगाई बस आ गया इतनी हमारी। ज्यादा हो गई है, ऊपर से हाँ। लोग इतने तंग आए, अपनी जिंदगी से लोग खुदकशियां कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, घर घर झगड़े पड़ रहे हैं, घर घर में बहुत परेशान है दुनिया। माँ जी चीज़ें सस्ती नहीं हुई नहीं अभी? सस्ती कब हुई है, सस्ती वो हुई कहना चीनी का रेट भी गिरा दिया हुकूमत ने, बहुत गिराया नीचे ज्यादा, है तो ऐसा? 10 मैं अन्ना डाले को पूछना वहाँ। आज रेट कम है, कल ऊपर से और बढ़ा दिया, यूनिटी खत्म होती जा रही है ना हमारे अंदर, बिल्कुल यूनिटी खत्म होती चीज बढ़ा दिया, कोई टेंशन ही टेंशन दे रही हैं। पाकिस्तान इसके लिए तो बनाया नहीं गया था कि यूनिटी खत्म हो जाए। मेरी बहन आप देखें, आप जो होती है ना घरेलू खवातीन, उन्हें जी, पता होता है हमने घर में ना ये काम करना है, ये काम करना है, ये खत्म हो जी, गया, जी, वो जी, खत्म हो बिल्कुल गया, सही है। पहले से लेकर अब तक, मतलब मैं 2-3 साल पीछे चली जाएं, जी, उसके बाद जी। अब तक क्या सूरत हाल है? बहुत ही बुरी किचन की- हालत है। किचन की हालत जानी मुझे बहुत आपने बुरी अपनी। हालत है, बहुत ज्यादा बुरी बताएं वो हालत कौन है। सी चीज़ें जो रोज़ किचन में फॉर चाहिए? एग्जाम्पल चीनी चाहिए होती चीनी है, चाहिए। आटा चाहिए होता आटा है, घी चाहिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, हाँ। और चावल आटा ये सारी चीजें चाहिए होती है। लेकिन यही चीजें महंगी हो जाएंगी तो गरीब इंसान खाएगा क्या? बेस्ट बेस्ट मुझे ये बताएं। मैं माँ जी से भी बात करता हूँ, मेरी बहन आप बड़ा अच्छा बात करें। माँ जी, जी माँ जी बताएं, आप ये जो कहना चाहती हैं, मेरा बेटा आप बताएं, मेरी छोटी बहन है आप। कह रहे हैं हम बोल सुन नहीं सकते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इलेक्शंस का आप बताएं, आप इस तरह ही बताएं। होता है। कह रहे हैं गूंगे बहरे लोग होते हैं बहुत सारा, उनको उनके हुकूक नहीं दिए जाते, और महंगाई है, सारे लोग पिसे हुए हैं, बिजली के बिल, सारी चीज़ें बहुत महंगाई है, आम बंदे के लिए रहना मुश्किल हो गया। मेरी बहन, आप मेरी छोटी बहन है, इनसे ज़रा तरीके से पूछें कि ये क्या समझती हैं, अकबरी मंडी के अंदर भी या बाहर रिटेल की जो शॉप होती हैं, दोनों में रेट का क्या फ़र्क आ रहा है, यहाँ क्यों आना पड़ा, घर का बजट कैसे चला रही हैं, कितना बजट है? बहुत मुश्किल। कह रहे हैं हम हर साल बड़े अरसा हो गया हम यहीं से आकर चीज़ें लेकर जाते हैं, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं रह गया, बाहर की दुकानें पे यहाँ की दुकानें बिल्कुल सेम है, लेकिन बस वो 10-20 रुपए बचाने के लिए हम इतनी दूर आते हैं, यहाँ के धक्के खाते हैं और सब चीज़ें पूरी करते हैं। जी माँ जी, मैं आपके पास आता हूँ, मैं माँ जी की बातें मैं सुनना चाहता हूँ, देखें उनका सब कहने बंदे, को दिल हर कर रहा है। बंदा ज़रा मुश्किल में है, हाँ लेकिन जी। फिर ज़ाहिर है घर का खर्च वगैरह चलाना ही है। आप इनसे पूछें कि पाकिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत आई है जो सबसे अच्छी थी, जिसने बहुत अच्छा काम किया, या अभी भी कोई है? क्या नवाज शरीफ की हुकूमत तब तक बहुत अच्छी थी, हाँ। अभी भी अगर वो आए तो फिर बहुत अच्छी है, आपकी हुकूमत का कह रहे हैं कोई भरोसा नहीं है। इन्हें बताएं, 16 माह पहले उनके भाई की हुकूमत आई थी, 16 माह तक उनके भाई ने हुकूमत की है, शहबाज शरीफ साहब ने, क्या उन्होंने कंट्रोल किया, इनको लगता है? क्या नहीं, 16 माह की पहले की बात ही, नवाज शरीफ की हुकूमत बहुत अच्छी थी, उसके बाद आके जितना सत्यानाश होना था हो चुका है, उसको नहीं ठीक कर सकता अब कोई भी आगे, अब मुश्किल ही है। बस यही अब दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ही बचाए। घर का कितना खर्चा है, आप कैसे चलाते हैं घर के सिस्टम को, कमाने वाले कितने लोग हैं? कमाने वाले हमारे घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, हाँ, कौन कौन? मेरा भाई और मेरा बाप। वालिद साहब आपके हाँ जी। क्या करते हैं आपके वालिद साहब, मेरी बहन? मेरे अब्बू गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वासा में, ठीक और है। मेरा भाई कॉल सेंटर में है, हाँ जी। और मैं स्कूल टीचर हूँ। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं ना, चीनी को लेकर या हम बाकी बातों को लेकर, बिजली को लेकर हम बात कर रहे हैं, या इसमें पेट्रोल को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, इनमें से आप समझते कि किस चीज़ों को कंट्रोल हो तो ये तीनों चीज़ें सस्ती हो जाएँ, ऐसा क्या है हमारे मुल्क में?
यही हर चीज़ महंगी है, बस कंट्रोल तो सारी चीज़ों में होना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ अपनी कंट्रोल में हो ताकि आम बंदे का रहना ज़रा आसान हो जाए। आज से 2-3 साल पहले घर की ग्रॉसरी कितने की आती थी, अब कितने की आ रही है? क्या है, पहले तकरीबन कोई 7,000-8,000 में आ जाता था, अब 12,000 तक भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम चीज़ें पूरी नहीं कर सकते। 12,000 के बाद भी सिर्फ दालें चावल वगैरह पूरे होते हैं और कोई होती है ना डिटेल चीज़ें पूरी नहीं होती हैं अभी भी। हाँ बहुत सारे लोग इस तरह करके खुदकुशी कर लेते हैं कि घर का खर्च नहीं पूरा होता। गूंगे बहरे लोग भी ऐसे ही बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मेरी बहन घर में सबसे ज़्यादा जो सामान रखते हैं, मेरी बहन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है ना वो सब्जियों का होता है, ऑयल का होता है। अदरक महंगी है, लहसुन महंगा है, ऑयल महंगा है, तो फिर आप घर में झगड़े नहीं होते आपके कि राशन पूरा नहीं हो रहा, फिर क्या करते हैं आप? जाहिर है हर बंदा इस तरह होता है, फिर यही हो सकता है कि और बंदे कमाना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा लोग घरों से बाहर जाते हैं, कमाते हैं। अब ये जो घरों की क्या औरतें भी बाहर कमाने के लिए निकलें, क्या ये बातें सही हैं? हम तक ये बातें पहुँची हैं? मैं आ रहा हूँ माजी, आपको आ रहा हूँ कह रहे जाना चाहिए, सब में है, जाना चाहिए। मजबूरी बन चुकी है, मजबूरी बन चुकी है, जी ज़रूरी, वरना कौन बंदा चाहता है हमारी बच्चियाँ हमारी बहनें बाहर जाके काम करें? ज़रूरी है, मजबूरी है। इन्हें क्या मैं दुआ में याद रखें बस, और अल्लाह सबका भला करे, पाकिस्तान का भला करे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। माँ जी वालेकुम, मैं माँ जी ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, बिल्कुल। दुख मैं होता है, खुद तकलीफ बेवा होती है औरत सानू। हूँ, मैं खुद बेवा औरत हूँ 9 साल से। मैं खुद कपड़ा सेल करके अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ और 2 बच्चे मैंने जॉब पे लगवाए हैं अभी। तो मकसद ये है कि दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है और तो कुछ नहीं। घर में आपने काम भी करना है माँ जी, जाहिर आपने बात घर है। के काम भी करना जाहिर है, बात फिर है। आप रोजी रोटी कमाने के लिए भी शुरू हो गई कि चलो मैं ही कुछ साथ मेहनत कर लेती अब हूँ। देखे ना, मैं कपड़ा ही लेनी आई ये हूँ आपके आज आराम के दिन है मार्केट मेरी माँ। में। तो क्या करें, मजबूरी है। बेटियों को तो निकालने से हम लोग रहे, जो हालात हुए हैं आपको पता ही है, जो हालात हैं, बेटियों का निकलना भी मुश्किल है। ऐसे ही माँ जी आप सच कह रही हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। मैं मार्केट में आज इसलिए आया था, मैं कहा हो सकता है डिटेल्स पे चीज़ें ना महंगी मिलती नहीं नहीं, हो, यहाँ शायद भी यहाँ को सस्ता महंगाई काम है। हो। अगर हम 10-20 रुपए बचाने की खातिर इधर आते भी हैं ना, तो वो किरायों पे लग जाते हैं। अब मैं राणा टाउन से आई हूँ, अच्छा, बड़ी राणा दूर से टाउन से सामान ले लिया आई हूँ। बिल्कुल। तो ये देखे मुझे घंटा लगा आने में, हाँ लगा, तो घंटा सिर्फ बर्बाद मोटरसाइकिल हुआ। रक्शे में, इसलिए कि चलो किराया बच जाएगा। घंटा आपने वापस भी जाना है, 1 भी घंटा है। आपको वहाँ पे भी लगना है माँ जी। बिल्कुल, मार्केट में उसके 3-4 बाद आप एक बजट बना कर लाई होंगी कि मैंने ये लेना है, उस बिल्कुल। बजट में चीज़ें पूरी आ गई हैं? नहीं, क्या क्या रह गया? काफी सामान है जो अभी रह गया। क्या क्या सोचा था यार? पहले तो मैं लेके जाती थी 3-4 हज़ार रुपए की दालें, तो मतलब सब्जियां वगैरह वहाँ से अब तो 10,000 की भी ले लूँ ना तो वो बजट पूरा नहीं होता। मैं कल एक जगह इंटरव्यू कर रहा था माँ जी, लोगों से पूछ रहा था, जैसा आप मेरी माँ है, मैं किसी से पूछ रहा था, कहते हैं अब हम किलो की चीज़ें नहीं लेते, अब हम पाव की चीज़ें लेते तो हैं। जाहिर है मजबूरी है, अब घी देख ले कहाँ पहुँच माँ जी गए। ये महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? अवाम कुछ सजेशन इनको दे दे, को ये मशवरा दे दे, आवाम बाहर निकलेगी तो कुछ बनेगा, उससे क्या होगा? औरतें बाहर निकलेंगी तो कुछ बनेगा। उससे क्या होगा माँ जी? उनका सर फाड़े जिन्होंने महंगाई की हुई है। हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही, नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही, इदारे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, खुद खा रहे हैं रिश्वत। कैसे? मैं कह रही हूँ कि रिश्वतें खाते हैं ये लोग। कैसे माँ जी? जाहिर बात है, यहाँ का पैसा बाहर भेज रहे हैं, अगर वो पैसा सारा पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान ये मजदूर बंदे खड़े हैं। हाँ, ये सारे मजदूर हैं माँ जी, ये बेचारा मेरे पास बेचारा अभी खड़ा चले है। रात को 1000 रुपया लेके जाता है, हाँ जी, घी का पैकेट ही 650 रुपए का है। वो बता रहे हैं, आज ये मैंने कोई दिहाड़ी नहीं मेरे लगाई। नहीं है, हाँ जी। हालांकि ये लोकल है, 500 के आए हाँ जी। तो महीना मसा गुजरना है। हम 6 बंदे हैं घर के। ग्रॉसरी पहले से कम हो गई है माँ जी, ऐसे ही है? नहीं, पहले से कम खरीदारी कर रही है ना ग्रॉसरी की हाँ, आप, मैं ये वो बात कर रहा हूँ कम माँ जी, कर कम हो गई है ना, पहले बहुत ज़्यादा पहले किया तो मैं करते 2-2 किलो दालें लेके जाती थी, 1.5 किलो 2 किलो हर दाल, तो हमारे 2-3 महीने आराम से सब्जियां पका के, अब नहीं। थे। सबसे ज़्यादा माँ जी ये होता है कि हम किसी भी तरीके से अपने घर का खर्चा पूरा कर लें, पूरा करें। और हम इन सियासतदानों को वोट, नहीं, चोरी तो नहीं ना करनी। सियासतदानों को वोट हम इसलिए देते हैं माँ जी कि ताकि हमारी मुश्किल नहीं, आसान अब तो हो। वोट देने ही नहीं ना हमने, अब किसी तो को भी नहीं? वोट देने ही नहीं, कोई इस काबिल नहीं है, नहीं काबिल ही नहीं है। कोई नया ही सोचेंगे आप? अल्लाह ताला बेहतर करे। इस वक्त कोई कंट्रोल नहीं है ना, आपके कहने का कोई मतलब कंट्रोल है? नहीं। माँ जी अल्लाह खैर करे। वो देखे ना, वो भाजपा भी पैसा लेके बाहर चला गया। हाँ जी। जो मुल्क का सरबराह होता है, पैसा इकट्ठा करता है, वो बाहर लेके चला जाता है। डैम के नाम पे पैसा जमा किया, बच्चों तक ने दिए पैसे, वो कहाँ गया पैसा? डैम बना है? माँ जी वो बीबी ने कहा था, ये जो बीबी मरियम है, उन्होंने कहा था आ रहे हैं अक्टूबर में वापस बड़े मियाँ साहब, सब ठीक हो जाएगा। चले वो देखेंगे, आप भी देखेंगे,
आप लगता भी है आपको, देखेंगे मैं आपसे पूछूं, लगता है आपको ठीक हो जाएगा माजिद? नहीं, नहीं, जो एक दफा बिगड़ गया वो नहीं ठीक होना। बिगड़ गए हैं वो। वो बिगड़ गए हैं सारे। और ये भी महंगा कर दिया, साथ हैगा इसको भी ले लो। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ ਵੋਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਓ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਬੇਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਆਂਦਾ ਚੀਨੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਗਰੀਬ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह खैर, कैसे हो आप? माजर आपके साथ बच्चे हैं छोटे छोटे, आपको ज़रा इंतजार करना पड़ा, मैं उधर बात कर रहा था, लेकिन आपके दिल की बातें मैं इसलिए आपके पास आ गया। सही बात है। दरअसल बात ये है भाईजान कि कोई भी हुक्मरान जो आ रहा है ना, वो सिर्फ अपना आप ही देख रहा है, दूसरों को, किसी को इंसानियत नहीं है उनके अंदर। अभी ये जो निगरान हुकूमत आई है, आने से पहले आप मुझे पहले बताएं किसको पता था इन्होंने आना है? एक अपोजिशन लीडर था राजा रियाज, उसने इसका नाम तजवीज़ किया, ये आ गया। क्यों? कि हमारी जो है वो भी जो है इनको कुछ नहीं कह रही। अगर हमको करोड़ रुपया बाहर से मिलता है तो 80 लाख रुपए तो जो ये ले जाते हैं, और 20 लाख से मुल्क कैसे चला? सियासतदान, जी हाँ, सियासतदान ले जाते हैं। अभी आप देखेंगे, मैं पंजाब आयल पहले मैं 1650 रुपए की पेटी लाता था, उसमें 12 पैकेट थे। अभी 2400 रुपए का मैं 5 पैकेट लेके आया। वैसे दोस्तों थोड़ा सा आगे भी बात करते हैं। कहने का ये मकसद है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब अभी बहुत फख्र से कह रहे हैं कि जी हमारे भाई आ रहे हैं 21 तारीख को। क्या करेंगे? ये जो बिलों का बर्बन छोड़ के हमारे ऊपर लिख के ये गए हैं, और लगाव हो रहा है, क्योंकि जो आपने लिख दिया वो पढ़ के आपको सुना रहा है। ये लिख के कौन गया है? ये शहबाज शरीफ इसहाकडार है। वो जब लंदन एयरपोर्ट पे गया, उसको चोर चोर की आवाज़ें लगी हैं, अगर तुम्हारे कान नहीं सुन सकते, तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, क्यों लिख कर गए हो? अभी इन तमाम जितने भी सियासतदान हैं, ये आवाम के लिए इतने रहनुमा बनते हैं, जितने बिल हैं इनको ऐलान करना चाहिए कि तमाम जो बिल नहीं दे सकते हम अपनी पॉकेट से देते हैं, तो फिर तो आता मजा। वही तो सिलसिला तो हमारे से लेकर हमारे को ही देना है, तो कैसे हम देंगे? अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दूध है, अभी देखे दूध नहीं कहाँ चला गया, सब्जियाँ कहाँ चले गई। जो हमारे मुल्क की पैदावार है, यहाँ से मैं 60 रुपये किलो चावल लेके जाता था, अभी 480 रुपये किलो है वो, उसमें भी मिलावट है। इनको क्यों नहीं पकड़ते? ये जो लोग आते हैं इनको पकड़ने के लिए, ये उनको 1000-2000 दे देते हैं, वो अपना ईमान बेच कर घर चले जाते हैं। इनके लिए महकमे बने हुए हैं, ज़लील इंतजामिया के। महकमे बने हुए, तो वो महकमे क्या कर रहे हैं? महकमे भी खा रहे हैं, ऊपर भी खा रहे हैं, नीचे वाले को बोलते हो कि तुमने इतने पैसे इकट्ठे करके ला रहे हैं। मैं खुद कहता हूँ ये मलक नुमान है, ये इधर जब पहले इनकी हुकूमत थी की, वो लाखों रुपए शालमी से, आजम मार्केट से इकट्ठे करके ये देता था जंगीर तरीन को। ये मलिक नुमान कौन है? ये अपना मलक नुमान इधर खड़ा हुआ था सुबाई में। अच्छा। पीटीआई की तरफ से। अच्छा। वो हाजी गुलाम महीउद्दीन के साथ। अच्छा। तो वो इधर से भाईजान सदर बना हुआ है। मलक जमान नाम का बंदा नहीं था? मलक जमान, उसकी बात कर रहा हूँ, मलक जमान की बात कर रहा हूँ, मलक बाजी का बेटा। अच्छा। तो वो कितने पैसे इकट्ठे करके जाके इनको देता था, हैं? तो ये लोग इकट्ठे करते थे। अभी आप देखें, वो पटाटो लेके जाएगा, उसके सामने ये सब उधर रश पड़ा हुआ है शेराले में। वो क्या है? ये आदमी उठा, वो आदमी उठा, ये किसका आदमी है? कुम्मे पहलवान का आदमी है। वो भी भाईजान गाड़ियों को वहाँ पे लोडिंग करवाते हैं। ऐसा भी पैसे की चीज़ के लेते हैं वो गाड़ियाँ जो लोडिंग होती हैं, जो सामान कपड़ा उतारती हैं, मजदा का लेते हैं 500 रुपये, वो जो पिकअप आती है उसको लेते हैं 300 रुपये। टैक्स है? कोई सरकारी टैक्स नहीं, गुंडागर्दी टैक्स है। तो आप देखें, बेटियाँ बहुएँ, माँ बहनें सब जाती हैं, रास्ता बंद पड़ा होता है। मैंने उस दिन मलक जमान को कहा, मैंने कहा ये आप देख रहे हैं, कहते मुझे आप एप्लीकेशन दें। मैं क्या आप आंधे हैं? आप अपना वीडियो पे इसको कहें, आप जाकर DCO लाहौर को बोलें। ये कैसा है? देखिए, महकमे को तो सबसे पहले काम बनता है ना। भाईजान मैं ये बात करता हूँ, महकमा वालों तो इनको छोड़ा हुआ है ना लानते लेने के लिए। ये छोटे लोग हैं, तो इसको में वो बैठे हुए हैं। अभी आप देखें, कल मैं किसी के घर में बैठा हुआ था, तो वो सरकारी आदमी थे, ये वापटा टाउन में, जिस कमरे के अंदर कोई भी नहीं रह रहा, खुदा की कसम, उसका भी ऐसी छोड़ा हुआ था। यार क्यों? कहता है जी कौन सा हमने बिल देना है? शहबाज शरीफ अपने पास से दे, अपने पास से दे, इतना भाई बनता है कि जी मेरे पीछे अवाम है। क्या अवाम को दिया 3.5 साल में? कुछ देकर गया है? खाली उसने बगावत की है, मुल्क के अंदर नाहक पैद की है,
वो लोग जो बेवकूफ़ हैं इसके पीछे भाग रहे ये हैं। जो 16 माह की हुकूमत थी उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, इन्होंने भी कुछ नहीं तो ऐसा किया। कोई सही है बंदा? वो तो उससे ज़्यादा। मैं तो माजी से पूछ रहा था, कोई सही बंदा है? कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। कौन आगे संभालेगा फिर सिस्टम? आप देखें सिस्टम है, अभी आप देखें ये बैठा हुआ है, ये दुकानदार उससे पैसे ले रहा है, क्यों ले रहा है? इसके बाप की जगह है, सरकारी जगह, ये पुराना लोगों का गुजरने की जगह है। ये लोगों ने देखो पैसे लिए हुए हैं, कहाँ दुकानें लगाई हुई है। यार ये सोचना चाहिए, ये ऊपर वाले अंधे हैं। अभी हम जो कह रहे हैं, ये घर बैठ के नहीं देख रहे, देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। जितने बड़े अदारों वाले समझे आप, इनको गोली मार देनी चाहिए, इनको सजाएं देनी चाहिए, अंदर डालना चाहिए इन लोगों को। मैं सही गलत कह रहा हूँ? भाई साहब महंगाई कंट्रोल कैसे की जाए? महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? हो सकती है कंट्रोल। अभी आप देखें डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, तो फर्क क्या हुआ भाई जान? एक तरफ से हमें रिलीफ दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे को गला काट रहे हैं। अगर डॉलर कम हो रहा है तो चीज़ों का रेट कम हो रहा है? कुछ नहीं जी हुआ कम रेट, कोई नहीं, ऊपर जा रही है भाईजान। हर आदमी अपनी मन मर्जी का रेट लगा रहा है। मेरे मोहल्ले में वो आते हैं फ्रूट इंस्पेक्टर, वो आके बोलते हैं यार रेट लिस्ट दिखाएं। वो कहते हैं यार हमारे पास रेट लिस्ट तो नहीं है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चेक करते हैं। वही सर, वही मैं कह रहा हूँ। वो आगे भाई किसी 1000 रुपया ले गया, किसी 2000 ले गया, जुर्माना करके जाते होंगे। हाँ, वो जुर्माना कुछ नहीं है, पैसा ले जाता है, अच्छा, वो चला जाता है, लेके जाते। उसका नाम आभास है, अच्छा। आपकी तरह दाढ़ी है उसकी, वो शक्ल से लगता ही नहीं है, शक्ल से लगता ही नहीं है। दाढ़ी बना दी आपने उसकी? नहीं, कौन कहते हो दाढ़ी है? उसका गेटअप ऐसा ना मेरे भाई, गेटअप ऐसा है। अच्छा। वो ये है कि शक्ल से लगता नहीं है कि ये भाई इंस्पेक्टर होगा, खुदा की कसम आम जैसा आदमी लग रहा है, लेकिन भाई वो पैसे लेके खा के जा रहा है, लोग उसको दे रहे हैं। महंगाई कंट्रोल कैसे होगी फिर भाई साहब? तो नहीं ना कंट्रोल हो सकती, कंट्रोल तब होगी ऊपर से सिस्टम सही हो। अभी आप देखें बिजली वालों को पकड़ रहे हैं, तो उनको छोटे जो लाइनमैन है, दूसरे तीसरे हैं, उनको निकाल रहे हैं। उन निकालना है तो एसिडेंट को निकाल लें, उससे बड़ा जो है उसको निकाल लें जो पैसा खा रहा है। वो उसको नहीं पता। नहीं तो ये बिजली चोरों को अगर पकड़ रहे हैं, आपको लगता है इससे बिल की कीमत भी कम हो जाएगी? बिजली कुछ नहीं होना सर, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। ये बाहर की हुकूमतों को दिखा रहे हैं, हमारे को तो वही मुश्किल है, वही हमें दे रहे हैं। हुकूमत जैसी कोई चीज़ ही नहीं पाकिस्तान में, हुकूमत है नहीं है पाकिस्तान में। सभी इतनी हुकूमतें तो हैं जिनको आप लोग जा के वोट देते हैं, कोई नहीं दी। आप तो खुद हुकूमत बनाते हैं साहब। हम लोग खुद गलत हैं। हम नवाज शरीफ पे भरोसा किया था, हमने नवाज शरीफ को वोट दिया था, बाद में को वोट दिया वालों को उन्होंने आगे आने ही नहीं दिया ना। नून की बात करें ना, अभी नून आ रही है दोबारा वापस, मियाँ साहब आ रहे हैं अक्टूबर में वापस। चलो अल्लाह करे हालात अच्छे हो जाएंगे। बहुत मुश्किल है चित्र खाना से आ रहा है, हालात चंगे नहीं होंगे। भाई साहब ने बड़ा जेन्युइन गुस्सा कढ़िया जे। 10 लाख मियाँ साहब के इस्तकबाली वास्ते पब्लिक आएगी। मैं कहना 50,000 अगर मियाँ मैनू गिनती करके साबित कराइए, मैं मियाँ दे थले बह जाऊंगा, मैनू छितर मारी है तो भूल ही जाए, समझो कि नहीं। इस कदर चोर ने मुल्क सवारो, कर्ज उतारो, सारे रुपये लैके बाहर चले गए, तो मुश्किल सानू पा गए। जेड़ा माँ की कोख च बच्चा अजे बाहर भी नहीं आया, वो भी कर्जदार कर गए। ये चोर ने बड़े बड़े डाकू ने सारे अगे आओ ना, तुसी गल पूरी नहीं की। करोड़ां रुपया आ जेड़े पेट्रोल पंप वाले है और रात अमीर हो रहे। साडे वास्ते है ना सब कुछ। रात को देखे ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਨੀ ਦੀ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂਗਾ? ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं ਜ਼ਖੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੀ ਆ? नहीं कुछ नहीं जी। रात को देखो पेट्रोल की कीमत बढ़नी थी, तो सब पेट्रोल पंप जो है ना बंद कर दिए, हमारे पास पेट्रोल नहीं है। बाकी जो चीजें मिलती हैं इन लोगों ने क्या किया? उनके पास मसाले 1 लाख लीटर पड़ा हुआ है, 26 रुपये बढ़ गया, तो देखो वो घर बैठे तो वो अमीर हो गए हैं। मेरे को ये बात बताएं, इनको कोई पकड़ नहीं सकता। ये जी कराची से हमने इतनी चीनी पकड़ ली, वो जो इनके पास था वही ओपन कर दी, हमें बोल रहे पकड़ ली। तो आप तो खुद उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। आटा देखें आप कैसे है, कहाँ गई 2 रुपये की रोटी? मियाँ साहब बोल रहे थे अभी तो ना 2 रुपये की रोटी। अगर अपने बाप के बेटे हैं ना, तो अपनी पॉकेट से पैसे दें, अपने गिरमान में झांक कर देखें कि खुशबू कैसी आती है। मियाँ साहब आओ ना, देखो सारे गल करते अपने दिलों की गल्लां दसो, सारे तुसीं भी दसो, भाई साहब भी दसो। ये कि जो रोना है ना महंगाई का, 24 करोड़ आवाम ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਕੇ ਬਾਪ ਕਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਚਲਾਓ। ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਸਭ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ? 72 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ 71 ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਲੰਡਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਲੰਡਨ ਗਏ, ਮਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਉੱਥੇ ਭੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ?
ਕੱਢ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਮਦਾਦਾਂ ਅਗਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇਮਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨੇ 24 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਤੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋ ਸਾਡੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਆਇਆ ਮੁਸਲਤ ਹੋਇਆ ਵੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਫਿਰ ਹਰ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ शेर बोलो ना सागर साहब का जिस शहर में लुट जाए फकीरों की कमाई उस शहर के सुल्तान से कोई बोल हुई ਵਾਹ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾਏਗੀ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਲਾ ਕਰ ਦੇਗੀ ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਐਸ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੁਕੂਮਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੱਟੋ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਮਿਲ ਤਾਮੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਾਂਸੀ ਦੇਤੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੈ दूसरी चीज़ का देखो चीनी अगर थोड़ी थले आई तो पेट्रोल कितने चला गया हाँ चीनी थले आई है यानी कंट्रोल किया महकमे ने कंट्रोल किया और बहुत जी जितों मिलों के निकलनी ना उत्थे जाके देखो कि ट्रकों के ट्रक खलोते ने रेट हमेशा याद रखो मिले के निकलती उत्थे चीनी तैयार है मतलब फिर हुकूमत ने चीनी के रेट पे काबू पाया हुकूमत ने किया फिर काम है थोड़ा बहुत महंगी बिकनी पई है बॉय अगर मैं चीनी का कारोबार करना मेरे अंदर 15 बोरियां लगी हैं ना आ गया फड़ो जी है 15 बोरियां स्टॉक की ने और भाई मेरिया 2 विकदियाँ भी ने नहीं स्टॉक किया रखो जी नाल अखबार से आ गई चीनी पकड़ी गई 15 बोरियां 100 बोरियां जिथे हज़ारां लखां बोरियां लगी मिलों के तैयार होंगी उत्थे क्यों नहीं जाते क्यों कि शबाज शरीफ दी मिलों ने वो जरदारी दी मिलों ने उत्थे जा ही नहीं सकते ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਭਾਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਇਹ ਹੁਣੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਰੇਟ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 7900 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਲੋ 165 170 ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣਗੇ ਰਿਟੇਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਚਣਗੇ ਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ 5-10 ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 9000 ਦਾ ਤੋੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਸਸਤੀ ਵਿਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਤੇ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਚੀਨੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਬਤ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 4-4 5-5000 ਰੁਪਏ ਮਨ ਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ 24000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਓ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਊ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਖਾਊ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਮੁਤਰਖਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰੋ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਵਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਚਿਰ ਖਵਾਏਗਾ ਆਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੁਣੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਿਸੇ उनके साथ मैं बेवकूफ़ी है अल्लाह का भी गुनाहगार ने और अपने इंसानियत के भी गुनाहगार ने वो बच्चों ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕੀ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੱਸ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ। ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮਾ ਨੇ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੋਰ ਕਾਲੇ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਹੱਥ ਲਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਾਜਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਾਜਰ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਇਸੀ ਜਾ ਕੇ ਸੋਏਗਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਸਰ, ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖਾਲੀ ਲਾਠੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਹੀ ਤਹਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, 3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਹੀ ਤਹਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਭੱਟੋ ਕੋਲ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਭੱਟੋ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਵੋਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਈਏ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਰ ਛੱਡੀ, ਸਮਝੋ ਇਧਰ ਆਓ, ਮਾਰੀ ਇਧਰ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਣੋ ਜਰਾ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਦਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, हुकूमत काम नहीं कर रही, भाई भी कह रहे हैं कोई वोट नहीं, अंदर जाओ रेट कुछ हो रहेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਨਣਾ ਵਧਾਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਰਾ। ਹਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਮਾਓ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਬੇਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਆਂਦਾ ਚੀਨੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਗਰੀਬ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤੜੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਐਸੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ। ਮਾਰਕੀਟ ਗਏ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਫਲਾਣਾ ਮਸਲਾ, ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਹੱਲ ਭਾਈ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵੋਟ ਪਾਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਮੀਨੀ ਜੈਸਾ, ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਮੀਨੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਕਿਧਰੋਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਣਾ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਉਨ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਤੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਪਾਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ। ਮੇਰਾ 2008 ਦਾ ਵੋਟ, 2013 ਦਾ ਵੋਟ, 2018 ਦਾ ਵੋਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ NA 246 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ NA 246 ਚ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੋਟ ਉਹਦੇ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ। ਸਿੰਧੀ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਈ ਤਾਸੁਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1500 ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਸਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਢਿੱਡ ਥੋੜੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੀ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਢਿੱਡ ਬੜੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਛ ਹੈ ਖਾਦੀ ਹੋਰ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਉਸਤਾਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਦਲੀਆ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਦਲੀਆ ਖਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਦੱਸੋ। ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ले लो। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ ਵੋਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਓ ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਬੇਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੀਜਾ ਆਂਦਾ ਚੀਨੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਗਰੀਬ ਕਿੱਧਰ जाए। मैं तो बोल रहा हूँ जो भी आएगा ना अल्लाह और रसूल के वास्ते पाकिस्तान के बारे सोच ले बस। मैं यही बता रहा हूँ रेंटर पावर की जगह रेंटर पावर की जगह सरमायाकारी कर ले। खैबर पख्तूनख्वा में पानी से बिजली बना ले, 1.5 रुपए का यूनिट पड़ेगा। इधर लोगों का बेड़ा रेंटर पावर लगा के 25% तूने खाना है 75% उसने खाना है। इसका क्या फ़ायदा? राजा परवेज़ अशरफ ने कितने लगाए, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने कितने लगाए? रेंटर पावर है, इनकी ज़रूरत सरमायाकारी कर ले, डैमें बना ले, डैमों से बिजली बना ले तो पाकिस्तान के आवाम को कुछ रिलीफ मिल जाएगा। जो फार्म ऑयल है जिससे तेल बनते हैं पाकिस्तान की सैली पट्टी पे लगा ले, उसमें कमीशन नहीं इतना हो जाएगा पाकिस्तान के बाहर दुनिया सप्लाई करेगा। अच्छा ये सारा आइडिया है ये बहुत आइडिया है, बहुत होता है। वो जो हवा से बिजली बन रहे हैं सल के साइली पट्टी पे लगा दे कितने बिजली बनेगा? सोलर लगा दे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो तो अपने चक्करों में रेंटर पावर है लगाओ, हमें भी अमीर कर दो खुद भी अमीर हो जाओ। आज कल वापडा वाले ने लिखा है कि हम विफाक को 3 रुपये 50 पैसे का यूनिट दे रहे हैं, विफाक हमें 78 रुपये का यूनिट दे रहे हैं। हमने कौन सा गुनाह किया? कितनी बड़ी बात है। बिजली देख ले, आटा देख ले 3000 रुपए का तोड़ा किधर से पूरा कर लेगा? एक बंदे का 600 रुपये दिहाड़ी होगा बेचारे का। हम यही रो रहे हैं कि ये चीज़ें सस्ते कर दो तो फिर चलो आवाम जिसको वोट दे रहे उसकी मर्जी है। हम किसी को ये नहीं बोले कि इसको वोट दे दे या उसको वोट दे दे, नहीं किसी पार्टी से यार कैसे बनाओ। दसो भाई साहब तुसी भी दसो आप भी तरीने भाईजान पूछ लें। और ये भी महंगा कर दिया, अब सांस है इसको भी ले लो, ये सांस जो है इसको भी ले लो। कभी हम शिकार के लिए कुंडी लेते थे, वो हमें 100 रुपए की डब्बी मिलती थी। अब कुंडियों की डब्बी जो है 350 रुपए की 400 की पकड़ने के लिए शिकार के लिए लाइसेंस जो है वो 2000 का कर दिया। पहले 300 का था, 1000 का कर दिया, अब 2000 का कर दिया। जो आता है वो चोरी आता है। अब तो अल्लाह ही है जो इनका खाना खराब करे, वरना वो कहते हैं हालात की जरूरत है, आवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी हमारे लिए पाकिस्तान के लिए। कुर्बानी क्या आवाम की कुर्बानी? कदों है 30,000 पिछले साल 2000 रुपए का लाइसेंस कर दिया, 3000 का, ये 300 रुपए का था, फिर 1000 का किया, अब ये 2000 का कर दिया है, जिसमें सारा दिन पानी पे बैठ के घर पे आ जाते हैं, बच्चों की बददुआएं लेते हैं, चलो कोई हांडी रोटी का सिस्टम चल जाएगा। इनने तो खाना खराब कर दिया, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं। भाई साहब 1 साल का लाइसेंस है ये? हाँ जी 2000 1 साल के देने पड़ते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि खैर है कोई बात ही, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कैसे कमा रहे हैं, मुश्किल ही अमल है। 2000 भी इंसान की जैसे जाना मुश्किल काम है, लेकिन 2000 लगा के बच्चों की रोजी कमाने निकले हुए हैं, मिल जाता है शिकार, मामला हो जाते हैं। शिकार ढूंढना पड़ता है, किराए लगाने पड़ते हैं। एक ज़माने में मलेशिया के लोग बाहर जाते थे मजदूरी करने, जब महातीर मोहम्मद आया तो 22 साल में उसने मलेशिया को वड़ बना लिया। आज हम पाकिस्तानी जा रहे हैं मलेशिया में मजदूरी। आज जापान 1 साल टेक्नोलॉजी चला रहे हैं, अगले साल मलेशिया को दे रहे। क्यों तरक्की कर रहे? हुक्मरान सही हो, वो साइकिल में जाते हैं, हमारे हुक्मरान बाजारों में जाते हैं, उनके साथ 50 पुलिस वालों की गाड़ियाँ होती हैं। तो हमारे साथ क्या है कि उधर बाइज को तो देख लो, उनका वजीर आजम साइकिल में जाता है, हमारे वजीर आजम को प्रोटोकॉल मिल रहा है। सही, मैंने भी देखा हुआ है, सही कह रहा है। चाहे आपका वजीर आला चाहे जो भी है, उनको देखना प्रोटोकॉल कितना मिलता है। हमारे जैसे थाईलैंड का जो भी वजीर आजम है वो पाकिस्तानी है, इधर पत्तूकी वाले साइड का है, हमजा यूसुफ, जो पिछले दिन उसकी हालत बर्दारी का तकरीर होता, उसने पैंट शर्ट नहीं पहना हुआ था, सलवार कमीज और चप्पलें लगाई हुई। हमारे सही एक मिनट, वो इंग्लिश में भी नहीं बोला, क्योंकि थाईलैंड की जबान जो है वो भी इंग्लिश है, लेकिन उसने उर्दू पे हालत बर्दारी का तकरीर लिया। हमारे इधर लीडर को इंग्लिश आता ही नहीं, वो बोले यही ड्रामे जनानियों की तरह वो बोलते हैं, उनको ना तकरीर करनी आती है ना बोलना। यार हमें तकरीर चाहिए कि हमें सहूलियत चाहिए? हमें बोलना आएगा तो सहूलियत देंगे ना।
अगर उसको कुछ बोलना सही तरीके से आएगा तो कुछ कर किसके लेगा। आगे बोलना उसने? एक मिसाल है, जब कोई उस्ताद अगर किसी स्कूल में पढ़ाने जाता है, जब उस्ताद कोई कुछ नहीं आएगा वो शिगिर्द को पानी आती है, वो हमारा वजीर आजम बनेगा। देखो गल है एक तो महंगाई खत्म करो, सिद्धी गल, महंगाई खत्म करो। एक कहना दा जिला गरीबां दा अमीरां दा बिजली दे यूनिट ए जिले फ्री फंड ने सारे मना इन्हां दे खत्म करो, सरकारी दफ्तरां दे खत्म करो, सारे सब ते खत्म करो जिन्हां दे भी ने सरकारी ऑफिसां दे भी, ते मस्जिदां दे यूनिट फ्री करो, मस्जिदां दे यूनिट फ्री करो, ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਗੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਮੁਖਲਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇਨੇ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਵੰਡਿਆ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 32 ਕੇ 33 ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 32 33 ਆਦਮੀ ਮਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਗਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣਾ ਪੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ 600 ਦਾ ਤੋੜਾ 1200 ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਜੇ ਕਮੀਜ਼ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ। भाई साहब को आगे करें, कमीज नहीं बिकी हाले, वो वापस आएंगे ना फिर बिकेगी ना। भाई साहब सामने भाई साहब कैसे तबीयत आप? ठीक है। आप पूछे क्या पूछना सवाल? भाई साहब मेरी मिजाज में आपसे कुछ पूछूं, मैं तो हालात जानना चाह रहा हूँ। मसला आपकी एक उम्र गुजरी है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान किस जगह पे आया हुआ है, मईशत किधर है हमारी? मैं ज़रा आई वांट टू टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। मैं सुनने को तैयार हूँ, मोर मैं सुनने को तैयार। डोंट कट मी ऑफ, आई विल नेवर कट एनी क्लिप। ठीक है, अब आपने उर्दू में बात करनी है, हर कोई नहीं अंग्रेजी जानता होगा ना आपको देखने वाला, बताइए। बात यह है कि मैंने सर कहा कि शुरू से आखिर तक बताऊँ, अगर मुझे टाइम दोगे। हाँ सब बताएं। बात यह है कि शुरू से ये है, मैं अगर शुरू से हर दौर में महंगाई हुई है, पहले तो हर दौर में मतलब किलो के पीछे 1 रुपया बढ़ गया, 2 रुपया बढ़ गए, हम उसको भी महंगाई कहते हैं, ठीक है। तो मेरे सफ़ेद बाल हो गए हैं, महंगाई तो हुई है। लेकिन जब आया है ना उस वक़्त उससे पहले डबल से ज़्यादा कभी ज़िंदगी में हुई ही नहीं। स्टार्ट वहाँ से हुआ। ये अगर गलत बात है मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मुझे सवाल करें, मेरी बात को जुटलाएं। मैं सवाल नहीं कर रहा, आपने अगली बात करनी है। आया दौर खत्म हो गया, अगला दौर आ गया सोना मांगी हुकूमत का, उसका बताएं आप। उसका अब ये अगला दौर है, अब ये उसने महंगाई शुरू की है, अब ये आ गए, इन्होंने पहले काम पीडीएम की हुकूमत आ गई। पीडीएम की ये भी फिर महंगाई और ज़्यादा हो गई क्योंकि बीज उसी का बोया हुआ था, ठीक हो गया। इन्होंने पानी दिया आगे, इन्होंने पानी दिया, पौधा बढ़ा गया इन्होंने आगे, फिर ये आ गए, काम सालों ने एक ही किया ना फिर तो। और ये फिर जब बहुत कुछ हो गया, अच्छा अब ये है, अब ये कहते हैं कि अब ये दज्जाली फितना है, दज्जाल आ गया हुआ है। ये नफ्सा नफ्सी का दौर है, जब क़यामत का दिन होगा ना तो नफ्सा नफ्सी का दौर होगा। ये अब ये नफ्सा नफ्सी का दौर है। ये हमारे हम एक दूसरे को कहीं हुकूमत को बुरा कहते हैं, हम हुकूमत हमें कुछ कहे, ये हम अपनी तरफ नहीं देखे हम क्या कर रहे हैं। यानी इससे पहले जो आपने दोनों की हुकूमतों की बात की, बात गलत हो गई। अपने आप को देखना फिर, अब अपने आप को हम नहीं देखते, ठीक है नहीं हुकूमत भी गलत है, हम गलत है, फिर हुकूमत भी गलत है। इदारे भी सब ये यहूदी लॉबी इस वक्त हम पर हावी है। अच्छा यहूदी लॉबी, अब आप अगर मुहिब्बे वतन है, अब इस वक्त मैं भी अगर बैठ जाऊँ ना हुकूमत पर, हाँ जी, तो आपको चलने नहीं देंगे या मरवा देंगे। हाँ जी, इस वक्त ये हिसाब हो गया है। अब आइंदा अब मैं आपको पेशन कोई बताता हूँ, बताएं। अब ये होना है, करने लगे बात। हाँ, अगर ये ना होगा, ये सब सुन रहे हैं, सुनाएं, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये हमारे जो इस वक्त हम जो हालात है ना, हम बिल्कुल अल्लाह खुदा रसूल के काम को छोड़ चुके हैं, और मुसलमान और इस्लाम बड़ी चीज़ है, और मुसलमान अपनी करतूतों से जलीलो ख्वार हो गया। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक मिनट, अगर ये ठीक हो तो कोई दुनिया की ताकत हमें जेल नहीं कर सकती। बेशक हम गुनाहगार हैं, इसके बावजूद अब भी हमसे वो डरते हैं। अगर ये मुसलमान ऊपर आ जाए तो हमें खा जाएंगे। बिल्कुल, ये 100% बात है। भाई साहब आखिरी सवाल करूंगा आपसे, मैं आखिर करना चाहता हूं। अब ये है कि अब ये आइंदा जब पेशन कोई करने लगा हूँ
अब आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, पेशेंट साल वही में हो करते हैं। हाँ जाए, जी। साल में हो जाए, इंडिया के साथ हमारी जंग होनी है, इंडिया ने ख़त्म हो जाना है और पाकिस्तान कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। इंशाल्लाह अल्लाह ताला क़यामत पाकिस्तान को कायम दायम रखे। वह मुल्क है, अल्लाह रसूल के नाम पे बना है, अल्लाह रसूल की हिकमत बना है और कायम रहने के लिए बना है। इंशाल्लाह, उसका इंशाल्लाह। थोड़ा सा सबूत मैं दे दूँ। इंशाल्लाह। सबूत ये है कि रूस कंगाल हुआ है तो टूट गया, इतना कंगाल हुआ टूट गया। पाकिस्तान इतना कंगाल हो गया, इसके बावजूद कायम है। क्यों? तो ताकत है। इस वक्त भी हर वक्त ये दुनियावी निज़ाम हमारे सामने है। इस वक्त भाई साहब मुझे एक बात थोड़ी सी रह गई। अच्छा। रूहानी निज़ाम भी मौजूद है इस वक्त, हाँ। उसकी वजह से हम बचे हुए हैं, वरना हमारे को तो इस काबिल नहीं है। आप जैसे बुजुर्गों की दुआओं से हम लोग बचे में हैं। आप जैसे थोड़ा सा बुजुर्गों की दुआओं सवाल से। हाँ जी करें सवाल। हाँ। मेरा आखिरी सवाल यही था। मैं आखिरी सवाल आपसे ही पेशेंट को तो आपने कर दी। अब आखिरी सवाल ये था, आप क्योंकि बुजुर्ग हैं, आपने दुनिया देखी है, आपने पाकिस्तान के हालात देखे हैं, कोई ऐसी बात बता दें कि जिससे पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो सके, कुछ ऐसा अमल बता दें, कोई ऐसा काम बता दें जो हुकूमत को करना चाहिए। उसको ये है ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम अगर अल्लाह रसूल के मोहब्बत करें, उसके काम पर आ जाए ना, ये तो पहले तो सब ठीक हो जाए। हाँ। एक अगर ये बंदे के पुत्र बन जाए, हाँ। इनको ईमानदार हो जाएं, जरा ईमान का ख्याल आ जाए फर्शनास हो तो जाएं। पाकिस्तान ऐसे खड़ा हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। असेंबली के अंदर जब इजलास होना होता है ना, उस वक्त पहले तलावत कुरान पाक होती है। मैं इनका जवाब देने लगा हूँ। हाँ जी। तलावत कुरान पाक होती है। हल्फ भी लिया जाता है, हाँ हल्फ जी, कि मैं अल्लाह को हल्फ, हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूँ। इस कौम के साथ वफा करूँगा। हाँ। आधा घंटा नहीं गुजरता तो इन्होंने एक दूसरे का गिरेबान पाड़े, तो जो इजलास की कापी होती है वो ऐसे उछालते हैं। ये क्या इंसान है ये? असेंबली के अंदर तलावत कुरान पाक के बाद ये सब कापियां फाड़ के हो जाते हैं। ये गलत बात है। हम सही हो जाएं, ये हुक्मरान जो है ये ना हो। इंडिया को फतह करना है, इंडिया तो चांद पे चला गया है, हम तो वही कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान में कायम रहना, उधर खत्म हो जाना है। ये छोड़ अब ये हमारे गोदामों में उतना अनाज नहीं है जितना उनके पास असला जोड़ा हुआ है। हाँ जी, उसमें उनकी करेंसी जो ना, ये करेंसी हमारी करेंसी 10 का नोट वहाँ गिरा तो को उठाता कोई नहीं। जैसे अफगानिस्तान की करेंसी जमीन पर मिल गई थी, आज उनका 450 किसी फकीर को 10 रुपए दो नहीं लेता। वो नहीं लेता। असेंबली में ये इंडिया को खत्म करने हैं। बस आप दुआ करें। भाई साहब पाकिस्तान ईमान कमजोर है। ईमान तो मैं बता कि मेरा ईमान कमजोर है, तो असेंबली वालों को पूरा है जो कुरान पाक की तलावत करके बाद एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा होता है। हमारे सरबराह तो वो है, हमारे सरबराह तो वो है, उनको नहीं अकल आती कि चलें जवाब दे दें। जवाब दे दें, प्रोग्राम कैंड हो गया। में और भी अच्छी बात है, कोई भी अच्छी बात करेगा ना, मसलन कभी खत्म मूल की बात हो जाती है, कभी ये होती है तो उसके खिलाफ जाते हैं। कोई अच्छी बात करता है उसको चलना ही नहीं देते, तो सब चोर हैं बीच में। तो वो यही बात कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे थे ना। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बात की जा रही थी चीनी के ऊपर, बात की जा रही थी महंगाई के ऊपर। लोगों के जो इस वक्त जो है ना, जिसे परचेजिंग पावर कहा जाता है, ख़त्म हो चुकी है। पहले लोग क्या करते थे, वो ये करते थे कि जी आप बहुत तादाद में चीज़ें ले आया करते थे, ग्रॉसरी कर लिया करते थे, राशन इकट्ठा कर लिया करते थे। अब वो दौर नहीं रहा। बातें सारी आपके सामने हैं। गुनाहगार कौन है आपके सामने है, जिम्मेदार कौन है आपके सामने है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम तमाशा को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।